اور ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہی جا رہی ہے اور یہ چیز ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک امیر آدمی ایک غریب آدمی کو جب قرض دیتا تو وہ سود کے اوپر قرض دیتا. اور یہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا تو سود کے اوپر قرض دیتا اور مدت کو مقرر کر دیتا. اور جب قرض لینے والے آدمی قرض کو ٹائم پر واپس نہیں کر پاتا تو قرض دینے والا انسان مدت کو اور آگے بڑھا دیتا اور قرض میں بھی یعنی سود میں بھی اضافہ کر دیتا. اور قرض لینے والا بندہ جب قرض کو ٹائم پر واپس نہیں کر پاتا تو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا کہ اصل جو رقم ہے اس سے زیادہ سود کا رقم ہو گیا ہے. اور یہ بدترین ظلم ہے اسلام کے اندر. شریعت اسلام نے اس سے بالکل قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے. لیکن آج وہ چیز ہماری معاشرے میں پائی جا رہی ہے. مسلمان اس سے ملبس ہے. اکثر و بیشتر مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ سود کے اوپر قرض لیتے ہیں، سود کے اوپر قرض لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ برباد کر رہا ہے، حرام کمائی کھا رہے ہیں. میرے بھائیو، اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کی پیٹ میں حرام غذا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو. واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. اسی مضمون کا اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ رب العالمین فرمایا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو اور سود کا جو رقم باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اے مسلمانوں، سود کا جو رقم باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے، سود کے اوپر قرض لینا نہیں چھوڑو گے، سودی لین دین کو نہیں چھوڑو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ہاں، اگر تم سچی توبہ کر لو، اگر تم سود کو چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو، سودی لین دین کرنا چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو، تو اے مسلمانوں، تمہارا اصل مال تمہارا ہی رہے گا. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. میرے بھائیوں، اس آیت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سود جیسی مہلک مرض میں ہم ملبس ہیں. میرے بھائیوں، تمام نوجوان سے، تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی مسلمان سود جیسی مرض میں مبتلا ہے وہ آج سچی توبہ کرے، عہد کرے اور اس سے فوراً چھوڑ دے. کسی سے سود کے اوپر قرض نہ لے اور نہ ہی کسی کو سود کے اوپر قرض دے. کھاؤ تجارت کی غرض سے ہو یا کسی اور ضرورت کے بنیاد پر ہو، سود کے اوپر قرض نہ لے، سودی کاروبار نہ کرے، سودی لین دین نہ کرے. میرے بھائی، یہ بدترین گناہ ہے. سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرہما ینکح الرجل امہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو، سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، نہ سود کے 70 دروازے ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے
जैसा कि कोई शख्स अपनी माँ से निकाह करे। मेरे प्यारे भाइयों, जरा अपने दिल में हाथ रख कर फैसला करो, अपने दिल में हाथ रख कर बताओ, क्या कोई इंसान, एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, एक कलमा पढ़ने वाले बंदा, क्या वो अपने माँ से निकाह कर सकता है? ये गवारा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीयत इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है। हमारे इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है, क्योंकि माँ और बेटा एक दूसरे से निकाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये हराम है। मेरे भाइयों, जिस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के साथ तस्बीह दी है, तो वो हम उस चीज़ में मुलब्बिस क्यों हैं? जबकि हम अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते, हराम है। तो उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को भी हराम करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया। कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर दलीलें हैं कि लोगों सूद हराम है। शरीयत इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, और सूद जैसे बदतरीन चीज़ को माँ के साथ तस्बीह दी है कि जो आप में सूद खाता है, गोया को बंदा अपनी माँ के साथ निकाह करे। मेरे भाइयों, इस बदतरीन चीज़ से हमें तौबा करनी चाहिए। एक दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्रिबा इस्नान व सबऊना बाबन अदनाहा मिस्लु इत्यान रजुल उम्मुहु। क्या लोगों, सूद के 72 दरवाजे हैं, सूद के 72 दरवाजे हैं, और उनमें सबसे हल्का गुनाह ऐसा है जैसा कि कोई शख्स अपनी माँ से जिना करे, नौजुबिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला अर्राहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि दिरहम व रिबन याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु इंदल्लाह मिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सूद की हुर्मत को जानते हुए उसका एक दिरहम खाना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना करने से भी बुरा है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, सूद का एक दिरहम खाना जानते हुए, उसकी हुर्मत को जानते हुए, उसकी एक दिरहम खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 36 मरतबा ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा है, नौजुबिल्लाह। मेरे भाइयों, ऐसी चीज़ से मुलब्बिस रहने वाले इंसान से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, ऐसी चीज़ से बिल्कुल तौबा कीजिए। जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है और अपनी माँ के साथ तस्बीह दी है, ऐसी चीज़ हमें फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, सूद का कारोबार करना, सूद खाना, ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा पाप है। आइए एक प्यारी हदीस में आपको सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ के हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक ख्वाब बयान फरमा रहे हैं। एक ख्वाब बयान करते हुए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिब्रील अमीन ने कहा, आए अल्लाह के रसूल आगे चलिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हम आगे चलते गए, यहाँ तक कि हम लोग ये खून के नहर के पास पहुँच गए। ये खून के नहर के किनारे पर पहुँच गए। हमने देखा कि खून के नहर के बीचों बीच एक आदमी खड़ा हुआ है, एक शख्स खड़ा हुआ है, और खून के नहर के किनारे पे एक दूसरे शख्स खड़ा हुआ है। खून के नहर में बीचों बीच खड़े होने वाला आदमी जब वो किनारे पर आने की कोशिश करता है, जब वो किनारे पर आने के बाद वो खून के नहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जब वो किनारे पर आता है तो किनारे पर खड़ा शख्स अब सामने का पत्थर उठाकर, किनारे से पत्थर उठाकर उसके मुंह में दे मारता है, उसके चेहरे पर दे मारता है, और उस शख्स को फिर बीचों बीच कर देता है। पत्थरों से बार बार उसको मारा जा रहा है। खून के नहर में पत्थरों से बार बार उसे मारा जा रहा है, और उसको खून के नहर के बीचों बीच में लौटा देता है। जिस जगह पर वो पहले से था उस जगह पर उसे पत्थरों से मार कर वापस कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सवाल क्या पूछा है, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिसको खून के नहर में पत्थरों से मारा जा रहा है? जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल आगे चलिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हम आगे चले। उसके बाद जिब्राइल अमीन ने कहा, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे आपने खून के नहर में देखा कि वो पत्थरों से मारा जा रहा है, उनको पत्थरों से मारने की सजाएं दी जा रही है, अल्लाह के रसूल वो सूदखोर था, वो दुनिया में सूदी कारोबार करता था, सूद खाता था, जिसकी वजह से उसको पत्थरों से मारा जा रहा है।
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवाउन। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत भेजी है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, यानी सूद लेने पर और सूद देने वाले पर और गवाही देने वाले पर, उसके लिखने वाले पर लानत भेजी है। आगे फरमाया वक़ालहुम सवाउन, ये चारों अफराद गुनाहों में बिल्कुल बराबर हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सूद के ऊपर रुपया दिया, मैं लिया तो गुनाहों में कमी बेशी, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि चारों इंसान, चारों अफराद गुनाहों में बराबर हैं। आए लोगों, तुम ये सोचते हो कि सूद खाने से माल में इजाफा होता है, और वो लोग जो ये सोचता है कि सूदी कारोबार करने से, लोगों को सूद के ऊपर रकम देने से, पैसे देने से लोगों के अमवाल में इजाफा होता है। आए लोगों, तुमने कभी सूरा रोम को पढ़ा है? सूरा रोम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, सूरा रोम को पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा रोम के अंदर इरशाद फरमाया वमा तैतुम मिर रिबा लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह वमा तैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। आए लोगों, तुम जो सूद देते हो, तुम जो लोगों को सूद देते हो ताकि लोगों के अमवाल में इजाफा हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नहीं बढ़ता। हाँ, तुम जो ज़कात देते हो, तुम जो सदका और खैरात करते हो, तुम जो ज़कात देते हो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम जो ज़कात देते हो, तो यही लोग हैं जो अपने माल में ज़्यादा करने वाले हैं, अपने माल में इजाफा करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो अपने मालों में बढ़ोतरी करता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरा बकरा के अंदर फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। आए लोगों, सूद माल को घटाता है और सदका माल को बढ़ाता है। मेरे भाइयों, इन दोनों आयत करीमा से साबित हुआ कि सूद खाने से माल में कमी वाक़ होती है, माल और घट जाता है, लेकिन जो चीज़ माल में बढ़ोतरी का सबब बनती है वो है सदका और ज़कात। सदका और ज़कात देने से माल में इजाफा होता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। जो लोग ये सोचता है कि मैं सूदी कारोबार करके हमेशा के लिए अपने रुपये पैसे को, अपने धन दौलत को, अपने माल में इजाफा कर लूँगा हमेशा के लिए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने सामने रखनी चाहिए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, चाहे तुम कितना ही सूद ले लो, तो कितना ही सूद ले लो, आखिरकार तुम्हारा खसारा किल्लत ही होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चाहे लोग कितना ही सूद ले ले, आखिरकार उसका अंजाम किल्लत और खसारा ही होगा। मेरे भाइयों, मालूम यह होता है कि सूद लेने से माल में इजाफा नहीं होता, बल्कि और कमी वाक़ होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारेला हम तमाम को इन बदतरीन सूद जैसी बीमारी से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमारे लोग मुसलमानों में से, नौजवान में से जो इस सूद में मुलव्विस है, ऐ अल्लाह उसको फ़ौरन सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, सूद को छोड़ देने की तौफीक अता फरमा।